Yash Lugar, founder of CREALTH EDUCARE. I welcome you all to today's webinar. Of course, it's Market Kya Lagta Hai, and today is a day which I think was an important day where we had to kind of uh, schedule this Market Kya Lagta Hai, right? Because it was very important. After today's closing, we got a lot of messages कि सर मार्केट इतना गिर गया है, क्या करना चाहिए, and of course we got a lot of messages कि sir what's the new levels now. तो of course Sunday we will not be able to live पूरा नहीं जा पाया था because of some technical glitches, right? So today of course we are going to discuss about markets, about what should be our strategy going ahead, क्या important levels है, कौन से stocks पे focus करना चाहिए large cap में, and of course ओवरऑल व्यू में हम डिस्कस करेंगे. I'll also be opening the floor for questions one to one because I know there will be a lot of questions, and there is a surprise of course for all the attendees today, right? So अगर मेरी वॉइस क्लियरली आपको ऑडिबल है और चार्ट ऑफ निफ्टी विजिबल है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दो. आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? Okay, so let more people join in, right? And of course in the next 1 minute we're going to start. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स टुडे एज मैंने कल अपने ट्विटर पे भी डाला था, वी हैड शेयर्ड इन आवर लॉन्च कम्युनिटी ग्रुप्स आल्सो कि मार्केट मुझे लग रहा है एक ट्रेंडिंग मूव के लिए रेडी हो रहा है, राइट? करेक्ट फ्रेंड्स. एंड ऑफ कोर्स आज आप देख लीजिए एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट्स में आया, राइट? ऑफ कोर्स इट वाज ऑन द डाउन साइड. मैंने ये भी लिखा था कि अगर मार्केट्स 24,300 ब्रेक करते हैं देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ big down move, right? And if the market breaks 24,800, then markets will kind of go to new highs, right? This is clear, right, to everyone? Okay, now जल्दी से मुझे ये बताओ that what are your expectations before I think more people join in, right? uh, what are your expectations? Will market break 24,800 now first, or it will break 24,300 and go more down? Because I want to understand from the audience. उसके बाद मैं अपना detailed view समझाऊंगा with proper analysis, with proper charts, right? So जल्दी से everyone put their views on the chat box, please. Maybe a double bottom, okay. Shakeout 24,300 break, okay. So we have kind of mixed views, right? But yes, important views coming in. So friends, of course it is very important that सबसे पहले हम ये चीज़ डिसाइड करें, राइट, कि मार्केट में व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स, राइट? ठीक है, वाई डिड आई चूज 24,800 और 24,300, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो 24,800 में फ्रेंड्स अगर हम देखें, सो देयर वाज अ ब्रेक डाउन इन मार्केट्स एट 24,800, राइट? अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पे जाओ, अगस्त के महीने में अगर हम देखें, राइट, चार्ट्स अगस्त सितंबर अक्टूबर, देयर वाज अ ब्रेक डाउन इन मार्केट्स एट बिलो 24,800. अगर आप इस कैंडल को देखोगे, 24,800 ब्रेक किया था एंड देयर वाज अ वन वे डाउन मूव टिल 23,200, राइट? मैं आपको एरो से मार्क करके दिखाता हूँ, राइट? सो वी सॉ ग्रेट डाउन मूव. ठीक है, ओके. देन ऑफ कोर्स एक मार्केट में रिकवरी आई, मार्केट अगेन वेंट टिल 24,800, वहाँ एक हाई बनाया, फिर वहाँ से एक अगेन एक डाउनफॉल आया 16 दिसंबर को, वी टच 24,200 एंड अगेन बाउंस बैक, राइट? Okay, so it is very important for us to understand that
24,300 was the low of that day, which was the Thursday's expiry candle, right? And 24,300 was earlier also acting as a strong resistance, right? तो फ्रेंड्स आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो लेवल मेरा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, जब मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, देन इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट, राइट? दिस इज बेसिक टेक्निकल एनालिसिस स्टफ. सो अगर ये चीज़ है, then definitely 24,300 is a important level on closing basis, right? एक 24,300 है और एक हम बोल सकते हैं can act as a support, panic support for tomorrow, that is the panic day low of 24,180 which happened on Friday. The last Friday Sensex की expiry में of course we had a panic low and then market recovered from there almost 600 points, right? So that was a good support level, right? तो फ्रेंड्स ये लॉजिकली आपको समझना जरूरी सी 24,800 पे बार बार मार्केट्स क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बिकॉज इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अर्लियर, राइट? फ्रेंड्स आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो पहले अगर मेरा कोई लेवल, या जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? या हमें पुरानी चीज़ें याद रहती है, राइट? तो जो पुराना सपोर्ट था वो मार्केट्स को याद था एंड वो अभी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है. मैं ये हटा देता हूँ और सो दैट यू कैन सी इट मोर क्लियरली, ठीक है? तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ था वी सॉ अ गुड डाउन मूव, राइट? अब जब मार्केट्स रिकवर किया उसी लेवल को मार्केट्स ने एक रेजिस्टेंस की तरह लिया, राइट? सो फ्रेंड्स दिस इज इंपॉर्टेंट. मैं दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस इन लाइफ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाई 24,800 और व्हाई 24,300, राइट? तो ऑफ कोर्स आज फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम we had a decisive candle. ये कोई वॉलेटिलिटी का डे नहीं था. आज मार्केट खुला and one way it was down, right? Correct? So this was the first sign कि yes, market is trying to give a trending move. Okay? अब अगर फ्रेंड्स कल 24,300 और 24,180, ध्यान से सुनेगा, ये दोनों लेवल अगर मार्केट्स ब्रेक कर देता है then it was a bad thing for the markets, right? But tomorrow if we go down and then we recover and we close above 24,300, then कल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा फॉर लॉन्ग्स, राइट? बिकॉज अभी भी जो है कि अब जो ऑफकोर्स हम एक कहावत है मार्केट में कि लास्ट 10 days ऑफ दिसंबर, राइट, नॉर्मली एफआईएस छुट्टी पे चले जाते हैं, राइट? अब एफआईएस अगर छुट्टी पे चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेच कौन रहे मार्केट्स में अभी? एफआईएस, राइट? करेक्ट. तो अब सबसे ज़्यादा एफआईएस अगर बेच रहे हैं और वही अगर छुट्टी पे चले जाए तो मार्केट्स गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? एम आई स्पीकिंग, डू यू अग्री विद दिस और नॉट, राइट? कि लास्ट 10 days जो मार्केट्स में रहते हैं, मार्केट्स आर वेरी काइंड ऑफ, एक तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं उसमें, राइट? एंड नॉर्मली मार्केट्स हैव बीन बुलिश बिकॉज आफ्टर 20th जो आई थिंक ये फ्राइडे है, राइट? देन सैटरडे संडे वी हैव अ हॉलीडे, ओके? सो उस 22nd के बाद नॉर्मली एफआईआईज आ रहा हो ना हॉलीडे, राइट? 25th ऐसी छुट्टी है हमारी क्रिसमस डे, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मार्केट्स में हमें ये भी समझना है कि एफआईआईज, बिकॉज आज की भी आप अगर इफ़ यू सी द डेटा टुडे ऑल्सो, राइट? So if we see FI's data today, they have sold 6,500 crores in cash. They have sold in index future as well. They have sold in stock future as well. So it was a FII based sell off, right? And इसलिए आपने देखा होगा पूरा दिन मार्केट्स कोई भी बार रिकवर नहीं हुआ, right? So this was purely a FII based sell off, okay? On friends, ये जो डेटा रीडिंग है that is very important. If you see yesterday's data, ठीक है, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, स्पेशली फॉर दोज हु ट्रेड इन एफएनओ. हालांकि आई ऑलवेज सजेस्ट कि एफएनओ में आपको ट्रेडिंग तभी करना चाहिए व्हेन यू हैव ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. अगर आपके पास ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट्स में, देन यू शुड अवॉइड एफएनओ बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, राइट? और जहाँ रिस्की चीज़ें होती है वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे थोड़ा सा दूर रहें, राइट? जब तक आपको उसका प्रॉपर आइडिया नहीं है, प्रॉपर आपको पता नहीं कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, राइट, तब तक आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ओके? सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफएनओ उनको ही करना चाहिए जब जिनको प्रॉपर नॉलेज हो, राइट? तो फ्रेंड आप देखिए
लास्ट 2 दिन में एफ ने क्या किया है, जो अब लास्ट 3 दिन इनफैक्ट देख सकते जो 45,000 46,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, एफ आई एज हैव बीन कंटिन्यूसली एडिंग शॉर्ट्स, और 2 दिन में लास्ट 3 दिन में एफ ने ऑलमोस्ट 38 से 40 हज़ार शॉर्ट्स ऐड की, राइट। एंड इनफैक्ट एफ आई एस के मैं हमेशा बोलता हूँ प्रो का डेटा देखना बहुत ज़रूरी, प्रो ने भी सेम चीज़ किया है, राइट। उसने भी इंडेक्स फ्यूचर में अच्छा खासा माल बेचा है इन द लास्ट 2-3 डेज, एंड आप देखो लास्ट 2 दिन में मार्केट्स की क्या हालत हुई। तो जब प्रो और एफ अगर संग में मिल के दे आर अ सेलर इन द मार्केट्स, इन इंडेक्स फ्यूचर, इन स्टॉक्स, राइट, देन मार्केट्स बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स दो अगर बड़े प्लेयर्स एक साथ है तो उनको हराना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इट्स अ फाइट बिटवीन सी हूम, एफ आई एस, प्रो एंड क्लाइंट्स। क्लाइंट्स आर रिटेलर्स लाइक अस, तो क्लाइंट्स लॉन्ग जा रहे हैं, एफ आई एस एंड प्रो शॉर्ट जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए मार्केट जहाँ दो तरफ का पल्ला भारी होगा वही उसी तरफ मार्केट से आता है, ठीक है। प्लस फ्रेंड्स टुमारो वी हैव अ फेड पॉलिसी, राइट। कल फेड का एक मीटिंग है, तो उसमें मार्केट्स मे बी आर सेंसिंग अ समथिंग इन टर्म्स ऑफ अ हॉकिश कमेंट्री और अ बैड पॉलिसी, राइट। और मार्केट्स उसको डिस्काउंट कर रही है, ये भी एक हो सकता है सिचुएशन, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द थॉट प्रोसेस कि इसका ऑफकोर्स हमें एग्जैक्ट रीजनिंग फाइंड नहीं करना है, बिकॉज प्राइस एक्शन इज मस्ट, राइट। ये फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा रीज़न खोजते, अरे आज मार्केट क्यों गिरा, अरे ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो रीज़न खोज के कोई फ़ायदा नहीं। हमें ये देखना है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जो अभी तक मैंने समझाया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, राइट, कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुमारो एंड द कमिंग वीक, और मे बी द नेक्स्ट 3 days एंड द नेक्स्ट वीक, राइट। आपको क्या समझ में आया, उसके बाद मैं आपको संक्षेप में, मैं ब्रीफ में इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके, एंड देन विल मूव टू बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, राइट। बिकॉज मैंने ट्राई किया बहुत ही लॉजिकली समझाने का आपको, लेवल्स भी और मार्केट्स में जो डेटा है उसको भी, ताकि आप एक्चुअल में उसको समझ पाओ एंड यू कैन ऑफ कोर्स टेल मी। Okay, so Harish G is selling stop loss at 24,200. Vipin G is selling tomorrow will open below 24,300. Yes, quite a possibility. Should add longs if any reversal. If we break, we should avoid now. Yes, okay, absolutely. Okay, that's a good strategy. Can buy from next week. Dev G is selling. Okay, okay. So I'm happy. Very smart audience is there, and of course, trying to give good answers, right? So देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टे कॉशियस एंड अवॉइड नाउ, स्टे हम्बल. ओके, वेरी गुड. ओके, anyone, so more people participating in the in this, it will be more interactive and मुझे भी मज़ा आएगा आपको और बताने के लिए, right? Because today don't trade for 2 days. Yes, that is also a very good strategy नमित जी, because जब आपको क्लैरिटी नहीं हो, जब आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं फेवर हैं, बिकॉज फ्रेंड शॉर्ट करना सबकी बस की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। हम साइकोलॉजिकली एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट, हम शॉर्ट सेल करना आई थिंक 90-95% लोगों को नहीं आता, राइट। एम आई स्पीकिंग करेक्टली, राइट। यहाँ कितने लोग ऐसे जो जो ये अग्री करते हैं, या कितने लोग ऐसे जो मार्केट में शॉर्ट भी करते हैं, जस्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज normally what I have seen psychologically, it is as a human we are made in terms of more into the buying, right? शॉर्ट सेल करना में नहीं आता. शॉर्ट सेल का मतलब होता है आप कोई चीज़ को शॉर्ट पहले सेल करो फिर नीचे बाय कर लो, राइट. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो इट्स बेटर ऑलवेज कि जब आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अवॉइड कीजिए मार्केट, ठीक है. बिकॉज आप क्या बाई करके फंसने से अच्छा है कि मनी सेव्ड इक्वल्स टू मनी अर्न, राइट. एंड स्पेशली जैसे मैंने बताया आपको कि अभी फेड का इवेंट है, राइट. तो वो इवेंट में क्या होगा वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, राइट. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन जो हमें समझ में आ रहा है अभी नेगेटिव की तरफ है, राइट. बिकॉज बड़े लोगों ने अगर इवेंट के पहले माल बेचा है एंड अच्छा खासा बेचा है, ऐसा भी नहीं है, 6,000 करोड़ की सेलिंग हुई है कैश में, और स्टॉक फ्यूचर में भी 6,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, इंडेक्स फ्यूचर में भी सेलिंग हुई. तो ऑफकोर्स
दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, राइट? तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से आई थिंक येस ट्रियो, वी डोंट नो करेक्ट स्टॉप लॉस, शॉर्ट कवरिंग, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक, येस एब्सोल्युटली वेरी गुड। सो मैं अब इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? Again, a disclaimer from our side: whatever stocks and view we discuss is purely for education purpose. These are not recommendations. Please consult a financial advisor. We are not responsible for your action. This is purely an education webinar. This is a standard disclaimer which we put every time, right? Friends, Nifty में अब तेजी हमें तभी करनी तब या तो एक नंबर वन एक अच्छा रिवर्सल कैंडल बने जहां मार्केट्स अगर कल गिरे, और एक हैमर टाइप कैंडल बने, बिकॉज कल खुल के पे तो अभी लग रहा है सिचुएशन जिस हिसाब से डेटा आया और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स है, एक बार तो मार्केट्स खुल के गिरेगी, राइट? तो अगर खुल के गिर के रिकवर होकर अच्छी क्लोजिंग आए कल, देन वी कैन थिंक ऑफ लॉन्ग्स, राइट? सेकेंड, आज का जो हाई, आज का हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज का हाई अगर क्रॉस होता है 24,600, राइट, देन इट विल बी अ गुड थिंग। एंड ऑफकोर्स 24,800 के बाद तो हमें, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बुल्स हैव कम बैक और दिस इज द टाइम फॉर बुल्स, वो तब आएगा जब हम 24,800 के ऊपर क्लोजिंग देंगे, राइट? तो बहुत ही बड़े एंड वाइज लोगों ने कहा है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाय हायर बट विथ कन्विक्शन rather than buying lower with no conviction, राइट? फ्रेंड्स, ये लाइन आप एकदम अपने जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप अपने नोट पैड में सेव कर लीजिए कि आप चाहे चीज़ें 10 रुपये ऊपर, 20 रुपये या 2% ऊपर, 3% ऊपर ले लीजिए, बट तभी लीजिए जब आपको कन्विक्शन हो ट्रेड में। और आपको कन्विक्शन नहीं है और आप नीचे लेके उसको होल्ड कर रहे हैं, तो वो वैसी ट्रेडिंग हमें नहीं करनी। इट्स बेटर टू बाय निफ्टी अबव 24,800 rather than बाइंग नाउ। चाहे वो यहाँ से 500 पॉइंट बढ़ जाए, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है अरे यश जी आप तो बोल रहे 24,800 के ऊपर ले लीजिए, तो 24,300 में क्यों ना ले? बट मेरे दोस्त, आप ये बात समझिए कि एक स्ट्रेंथ बोल के चीज़ होती है, राइट? जब तक वो स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं दिखे, राइट, तब तक हमें बाय करके कोई फायदा नहीं है, राइट? हम बाय करके स्टक हो जाएंगे, फिर हम खुद ही को कोसेंगे, अरे यार हमने क्यों बाय किया, मार्केट तो और गिर रहा है, राइट? और फिर हम पैनिक में नीचे में बेचेंगे जहां हमें एक्चुअल में रिवर्सल हो रहा है, राइट? सो इसलिए 24,180 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,300 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 24,180 पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, 24,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 24,180 हम बोल सकते हैं उम्मीद की किरण है, राइट? जहां से कल इंट्राडे मार्केट घूम सकता है, राइट? बट अगर वो चीज़ नहीं होता है, मार्केट्स कल अगर खराब क्लोजिंग देती है, देन हमें कोई भी तरीके से बुलिश स्टांस नहीं रखना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर विद दिस, राइट? बुलिश कब होना है? दो सिनेरियो है, एक या तो हम कल एक बहुत अच्छा रिवर्सल कैंडल बनाए, एकदम डे हाई पे बंद हो नीचे जाके, तो ताकि क्या है, जो लेट लॉन्ग्स है वो कट जाएंगे या जो बाद में आए थे, या 24,600 और 800 के ऊपर मार्केट जाए तो, ठीक है? दिस इज द व्यू फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बताया था कि आई वॉज बुलिश, राइट? और मैंने टारगेट दिए थे 53,800 54,000, राइट, जो अचीव हो गए, राइट? अब बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली देखा 53,800 54,000 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है? और बैंक निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था एट 52,300 के आसपास। यहाँ से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, 1,500 पॉइंट की रैली आई थी 3 दिन में, राइट? सो वो हो गया। अब बैंक निफ्टी के लिए एकदम सेम वही लेवल से 53,800 और 52,250 से 52,300, राइट? जब तक ये दो लेवल क्रॉस नहीं होते, राइट, बैंक निफ्टी विल बी साइडवेज। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है कल 52,250 से 52,300, देन बैंक निफ्टी विल बी बेरिश, बिकॉज फ्रेंड्स नीचे ये गैप फिल होना बाकी है, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी है कि कल होगा, परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, आई ऑल्सो डोंट नो, राइट? बट बैंक निफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटिस कि बैंक निफ्टी में 53,800 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, राइट? एंड फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक बैंकिंग स्टॉक का चार्ट भी डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? सो प्लीज स्टे टिल द एंड। आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ हम की टेक अवेज लेके जाएंगे आज के सेशन से, राइट? सो डू स्टे टिल द एंड, आज बहुत मजा आने वाला है, राइट? ओके, सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए बैंकिंग स्टॉक्स में
चलो अभी वो स्टॉक का चार्ट हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, बट आई वांट फ्रॉम यू कि विच बैंक डू यू फाइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक एज ऑफ नाउ ऑन चार्ट्स। मैं फंडामेंटली बात नहीं कर रहा, चार्ट वाइज बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सा बैंक है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपके हिसाब से क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस। Okay, so Sandeep G is telling HDFC, Gautam G is telling HDFC, okay. Vipul G is telling HDFC, अरे वाह क्या बात है, तीनों HDFC हैट्रिक हो गई तो। सुरेंद्र जी is telling ICICI, okay. HDFC श्योर, ओके, अरे वाह, मतलब प्राइवेट बैंक ही देखने, PSU बैंक तो लिस्ट में नहीं किसी के। इंडसइंड तो कोई हालत में स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स वन ऑफ द वीकेस्ट बैंक्स। ICICI बैंक, ओके, 24,200 सर, वो तो निफ्टी का लेवल है। Federal Bank, yes, very good. Federal Bank is, yes, definitely one of the strongest. Kotak Bank, okay. Kotak Bank ने आज अच्छा कैंडल नहीं बनाया उतना। SBI, okay. So friends, मेरे हिसाब से one of the strongest बैंक जो एकदम ब्रेकआउट के पॉइंट पे है, that is ICICI Bank, right? Again, disclaimer, whatever we discuss is purely for education purpose. This is not a recommendation. Please consult a financial advisor. We are not responsible, right? फ्रेंड्स, ICICI बैंक में आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्टेडी अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। एंड अब देखिए मार्केट जब गिरता है तो ये इतना नहीं गिरा, राइट, एंड मार्केट बढ़ते ही इट इज देयर इन अप ट्रेंड, राइट। अब ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है, राइट, बट इस वीक अगर ये 1340 से 1350 का जो उसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर लेता है एंड गिव्स अ वीकली क्लोजिंग, then I think ICICI Bank can be the new leader, because fundamentally no doubt it is being doing very well, right, but technically also it's a very strong chart, right, and अब देखो हर बार आप कभी भी देखो ICICI Bank has been a beautiful trending stock, right, तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड है और एकदम प्रॉपरली आप देखिए 21 डेमा का आपका अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान में रखना है इस चार्ट को। अगर वीकली क्लोजिंग आती 1345 के ऊपर या इसका डेली क्लोजिंग भी अगर 1345 1350 के ऊपर आता है विद अ गुड ब्रेकआउट, राइट, देन दिस कैन लीड बैंक निफ्टी। यस, HDFC बैंक नो डाउट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट, बट मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट के बाद एक स्मॉलर टारगेट आ चुका है, राइट। अब फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है 1880 1890 क्रॉस करे, देन वी शुड थिंक अबाउट इट, राइट। दिस इज माय व्यू, अगेन इट शुड बी स्टॉक स्पेसिफिक फॉर एवरीवन, राइट, बट अभी हमें सेफर बैंक्स में जाना है, ठीक है। SBI के भी चार्ट्स ठीक है बट उतने भी अच्छे नहीं, राइट, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी स्टॉक का चार्ट अगर हम देख रहे हैं, राइट, और उसमें अगर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, राइट, तो ICICI बैंक में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है तो उसको हमें वॉच लिस्ट पर डेफिनेटली, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि आई ऑलवेज सेव फॉर स्ट्रेंथ, राइट। जैसे टेक महिंद्रा, मैंने आप सबको कितने बार बोला, हर लेवल पे बोला कि इसका चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप देखिए हर बार आप हर डिप्स में अगर किसी ने ऐड किया है तो इस बिन आज भी वो स्ट्रॉन्ग खड़ा था, राइट। 1800 ऑलरेडी हो चुका है, हम शायद 1600 से इसको डिस्कस करें, राइट। सो जो स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है वो मार्केट्स गिरने पे उतना नहीं गिरेंगे और मार्केट्स बढ़ने पे नए हाइज बनाएंगे, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक चार्ट, ओके, क्लियर है। सो अब हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश इंगल्फिंग बनाया, आप देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, ओके, एंड वहीं पे आज एक बेरिश इंगल्फिंग बनाया। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अपने पिछले रेजिस्टेंस जोन पे एक बेरिश इंगल्फिंग बनाया, राइट। सो स्मॉल और मिड कैप के अगर आपके स्टॉक्स है तो उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, ओके, एंड थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज जब टॉप के भाव पे, राइट, व्हेन एट द टॉप इफ समथिंग इज मेकिंग अ बेरिश इंगल्फिंग, राइट, देन इट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। अगर टॉप के भाव पे कोई बेरिश इंगल्फिंग कोई चार्ट में बन रहा है देन इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, ठीक है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए आज जो मार्केट ब्रेथ है, राइट,
निफ्टी में 50 में से सिर्फ एक स्टॉक ग्रीन बंद हुआ, वो भी सिप्ला, आई थिंक दैट वाज आल्सो जस्ट 0.1% और ऐसा कुछ ग्रीन था। निफ्टी 500 में 382 स्टॉक्स डिक्लाइन, 1116 स्टॉक्स पर एडवांसिंग। सो दिस वाज अ क्लियर साइन कि ये कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सेलिंग है। आज आज ब्रॉड बेस सेलिंग था ये फ्रेंड्स। ये मैं डेटा बहुत फॉलो करता हूँ। कितने लोग ये डेटा फॉलो करते हैं? बिकॉज मैंने काफ़ी बार ये डेटा के बारे में काइंड ऑफ डिस्कशन किया है कि आपको ये डेटा और एफ और प्रो का जो फ्यूचर्स का डेटा है और ऑप्शंस का डेटा में भी दोनों ही आपको फॉलो करना चाहिए। आप देखिए, अगर आप एफ का डेटा देखें पुट के साइड, उन्होंने काफ़ी बड़े क्वांटिटीज़ में पुट बाई किए इन द लास्ट 2 डेज। ये देखिए 386 से पुट 712। प्रो ने भी पुट्स बाई किए, जो उनके पुट सेल थे वो दोनों बाई में आ गए। तो फ्रेंड्स ये डेटा और जो आपका या credits to of course stockage for which we use for this data, right? Again, we don't have any association, just for a data purpose we use it. But again, advanced decline रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं पे भी एनएससी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, राइट? बट अगर इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन रेशियो है एंड ऑफ कोर्स वी आर सीइंग बेरिश कैंडल्स, मतलब वो जो बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, वही वाली बात है, ठीक है? तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दो डेटा पॉइंट्स हम देखें, ठीक है फ्रेंड्स? क्या आपको मज़ा आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपको वैल्यू ऐड करें? बिकॉज फ्रेंड्स, मार्केट क्या लगता है का सिर्फ ओनली मोटिव इज़ नॉट कि हम सिर्फ आपको मार्केट का व्यू बताएं, हम उसके इन डेप्थ एनालिसिस में जाए क्यों हमें ऐसा लग रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ऐसा लग रहा है, तो इट इज़ लाइक जो एक कहावत है इंग्लिश में, राइट? लाइक टीच अ पर्सन टू लर्न हाउ टू कैच अ फिश rather जस्ट कैचिंग अ फिश एंड गिविंग इट, राइट? ये जो कहावत है इंग्लिश में, तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको ये सिखाएं कि एनालिसिस करना है कैसे, ताकि आप खुद से भी उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस, नॉलेज और जितना टाइम मार्केट में बिताते हैं उससे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ मिलता है, राइट? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन में आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ फ्री फॉर एनी वन टू सी, एनी वन टू लर्न, राइट? और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग जुड़े, जितने ज़्यादा लोग सीखे, उतने ज़्यादा लोगों का काइंड ऑफ मार्केट्स में भला होगा। एंड दैट इज़ आवर सोल मोटिवेशन वाई वी डू दिस सेशंस, राइट? सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या शेयर नहीं किया, डू इट विद योर फ्रेंड्स, राइट? एंड फैमिली, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केट्स। एंड इट वुड बी अ ब्लेसिंग, लाइक हमारा सिर्फ सोल मोटो विल बी कि उनकी अगर ब्लेसिंग जाए, वो कुछ सीख के जाते हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी यूजफुल फॉर अस, राइट? फ्रेंड्स, अगर आप डाउ जोन्स पे आते हैं, यूएस मार्केट्स पे, ये देखिए वन वे रेड कैंडल्स, कोई रिस्पाइट ही नहीं है। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। हालांकि अभी यूएस मार्केट्स एक अच्छे सपोर्ट पे आ गए, राइट? जो प्रीवियस ब्रेकआउट दिया था इसने, राइट, उसको सपोर्ट पे रिटेस्ट किया था, देन अगेन ऊपर गया, अभी फिर से वो लेवल्स पे आ रहा है, तो दैट इज़ अ गुड सपोर्ट जोन, राइट? बट चार्ट्स फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, बिकॉज इट्स एवरी डे इट इज़ फॉर्मिंग लोअर हाई एंड लोअर लोज, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है? तो दिस इज़ डेफिनेटली देयर। और अगर मैं यहाँ से नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, राइट, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन पे आता है यहाँ पे, ओके? सो अब अगर ये ट्रेंड लाइन यूएस मार्केट्स ब्रेक कर देती है, यानी सपोर्ट ब्रेक कर देती है, देन इट कैन बी अ मेहेम फॉर अस, बिकॉज अगर यूएस मार्केट्स में भी ब्रेकडाउन आ गए हमारे मार्केट्स के साथ, then it will not be a very good sign for the market at all, okay? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएस मार्केट्स को भी हम ट्रैक करें और कल की फेड पॉलिसी को भी ट्रैक करें, बिकॉज कल की फेड पॉलिसी से काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कल की फेड पॉलिसी को अच्छे से ट्रैक करें, ओके? डॉलर इंडेक्स, जो मैम फ्रेंड्स मैंने बार बार कहा है कि दिस इज़ वेरी क्रूशल फॉर अस, बिकॉज ये अगर 107.50 के ऊपर चलने लग गया, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पैरामीटर। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, जब जब ये बढ़ता है तब तब एफ की सेलिंग बढ़ती है। आप देखिए, जैसे ये वापस 105.50 से 107 आया, आप देखिए एफ में सेलिंग चालू हो गई। एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया था, आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, राइट? एंड अब देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके 21 डेमा पे
जाके ये वापस रिवर्स करा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आ रही और आपको लगता है कि आपको मार्केट्स को डिटेल्ड वे में सीखना है, राइट, तो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल बैचेस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स और टेक्नो फंडा में हमने डिवाइड किया, राइट। वी हैव अ स्पेशल ऑफर ऑफ for all the attendees, right, which we'll be sharing in the knowledge community groups. So those who are interested to learn seriously, right, जिनको seriously सीखना है markets के बारे में, वो आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8240837252, मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट आवर टीम। देयर इज अ स्पेशल क्रिसमस ऑफर विच वी आर रनिंग, ठीक है। जिनको बेसिक सीखना है वो बेसिक कोर्स कर सकते हैं, जिनको टेक्नो फंडा विद प्रॉपर मेंटरशिप सीखना है उसका भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिनको डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट है वो उसका भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जनवरी एंड से सारे क्लासेस चालू होंगे, राइट। So don't miss this opportunity. There's a special offer for everyone, right? And this is with proper examples, proper learning, जैसे हम समझाते हैं वैसे समझाने वाले, with proper guidance and after market support and recording, right? अगर आप क्लास मिस कर देते हैं आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलती है, आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग देखिए और आप वापस फिर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू लर्न एज अ टीम, राइट। So friends, don't miss this opportunity. Contact our team. We'll also share the details in the knowledge community groups. Those who are not a part of knowledge community groups, they can also join it. हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया 8240837252. You can contact them. And this special offer is only valid for 1 week. So don't miss this opportunities. 20% ऑफ आपको सारे कोर्सेज में मिलेगा, राइट, एंड यू विल लर्न फ्रॉम द बेसिक्स इन ऑल, सो डोंट वरी, ओके। These are few of the feedbacks from our earlier students, right? You can Google also them, right? हमारे Google में भी काफ़ी reviews है, so you can just watch them, okay? So friends, let's come back to the topic. So dollar index is something which is very very important for us to track, right? अच्छा, जिनको जिनको जिन्होंने नॉलेज कम्युनिटी ग्रुप्स, आई थिंक काफ़ी लोग ने ज्वाइन नहीं किए, राइट। सो दोज आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉलेज कम्युनिटी ग्रुप्स, मैं उसका भी लिंक आपको दे देता हूँ, राइट। सो यू कैन जस्ट click on the link, right, and you can join them. These are for the attendees who are joining later also, right, या जो बाद में वीडियोस देखेंगे। नॉलेज कम्युनिटी के लिंक अब मैंने ग्रुप में डाल दिए, राइट, एंड विल बी शेयरिंग द स्पेशल ऑफर ओवर देयर आल्सो, राइट। सो या तो हमारी टीम को व्हाट्सएप कर दिए या नॉलेज कम्युनिटी ग्रुप्स को, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, राइट। फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रैक। 107.50 के ऊपर अगर ये चलने लग गया, देन इट इज़ अ मेहम फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज क्या होता है कि डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है एंड इट गोज टू द यूएस मार्केट्स, राइट। और अभी तो यूएस में भी सेलिंग आ रही, तो इट्स अ ग्लोबल सेल ऑफ विच इज स्टार्टिंग, राइट। दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट। तो ओवरऑल चीज़ें बेयर्स की तरफ ज़्यादा है, आई थिंक वो है हावी है, राइट। बट ओनली लाइनिंग इज कि 22 तारीख से नॉर्मली FI छुट्टी पे चले जाते हैं, तो 3 दिन है और 3 दिन हो सकता है मार्केट थोड़े ख़राब रहे, बट वी कैन एक्सपेक्ट अ रिकवरी और मे बी आफ्टर द फेड मीटिंग, ओके। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, ओके। सिल्वर पे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स वी हैव बीन बुलिश, राइट, फ्रॉम द बिगनिंग, ओके। एंड इस पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था, बट उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ। अगेन वी आर टेकिंग सपोर्ट एट दीज लेवल्स, राइट। सो अगर सिल्वर कोई भी चांस है $28-29 वापस आ जाते हैं, देन वी काइंड ऑफ कैन ऐड इट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। लॉन्ग टर्म पे मेरा व्यू इंटैक्ट है, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि एज अ सेफर एसेट क्लास, राइट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसमें ट्रेडिंग पे, मेरा अगेन डिस्क्लेमर है, देयर इज़ नो व्यू ऑन मी, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते रहे सर ट्रेडिंग के लिए क्या व्यू है। अगेन वॉट एवर वी डिस्कस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड लॉन्ग टर्म, प्लीज डू नॉट kind of consult your financial advisor, we are not responsible, but long term के लिए जिनको रखना है, you can keep 10-15-20% of portfolio as a liquid asset class, right। बाकी तो हमने बता ही दिया था कि जब मार्केट नीचे है आपको वापस कैश को डिप्लॉय करना है, वापस ऊपर जाए 15-20% वापस खाली कर लेना, बिकॉज अभी मार्केट ट्रेडिंग का मार्केट है फ्रेंड्स। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कोई भी ट्रेंडिंग मूव्स वन वे नहीं रहेगा। आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर नीचे मौका मिल रहा है, राइट। तो इट्स अ ट्रेडिंग मार्केट, राइट। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो है 60-65% आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना है, वो आपका हमेशा रहेगा।
ठीक है, बट 35 से 40% जो है आपको वो लिक्विडिटी के हिसाब से रखना है और ट्रेडिंग के हिसाब से रखना है, बिकॉज अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं रही तो क्या होगा, नीचे में आप पैनिक करके सेल करोगे, राइट, जहाँ बाई करना था एक्चुअली, जो मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया। गोल्ड पे भी अगेन द व्यू इज़ बुलिश, राइट, बट अगेन सिल्वर पे मेरा व्यू ज़्यादा बुलिश है, बट गोल्ड भी मुझे बुलिश लगता है, राइट, एंड ये ट्रेंड लाइन पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो इस लेवल्स पे अगर गोल्ड आए देन इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। अगेन ये जो बॉन्ड डील्स है फ्रेंड, इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, कल ही हम अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे थे इन द बेसिक कोर्स, राइट, एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि ये अगर ब्रेकआउट आया बॉन्ड डील में देन इट विल बी अ मैसिव मैसिव नेगेटिव फॉर अस फॉर इक्विटी मार्केट्स, राइट। तो ये बॉन्ड डील्स को भी बहुत क्लोजली वॉच करना है, यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है 4.5 के ऊपर ये यील्ड जाती है देन इट वाज अ बिग नेगेटिव फॉर द अगेन इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है। सो अगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रेकआउट अगर डॉलर इंडेक्स और इसमें आता है देन यू शुड बी वेरी 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 कॉशियस इन द मार्केट्स, ठीक है फ्रेंड्स। आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा एक आईटीसी का चार्ट मुझे डिस्कस करना था, विच हैज़ बीन अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। अगर आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है वो 450 से 460 लेवल्स के आसपास से हुआ था, राइट, यहाँ पे, और वो 530 से जाके फिर वापस उसको रीटेस्ट किया है उसने, राइट। So this is one of the strongest stocks, right, in the markets despite markets falling, right. So you can watch this also, अगर ये strength रहती है, right, then this can be a good opportunity to add ITC because उसका demerger भी आज I think final हो चुका है for the hotel business, right. So again these two stocks are showing strength as of now, right, but we have to see how things plan out for, but ऐसे ही strength stocks पे आपको रहना चाहिए ताकि markets गिरे भी तो आपको इतना effect नहीं पड़े, ठीक है। This is my again one of the small mid cap stocks which we have discussed, Capacit Infra. It has hit a new all time high today, right. हमने बहुत नीचे में इसको डिस्कस किया था जब ब्रेकआउट रीटेस्ट टेक्नो फंडा क्लास में, एंड टेक्नो फंडा जो हमारे क्लासेस होते हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया है, राइट। एक डिटेल कोर्स है जहाँ पे आप पूरा टेक्नो फंडा एनालिसिस सीखते हो, पूरा मेंटरशिप मिलता है आपको, राइट। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग दिस विद इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, राइट। इसकी फ़ीस हमने थोड़ी हाई रखी है बिकॉज 3 मंथ कोर्स प्लस 3 मंथ मेंटरशिप, ये वीकेंड ओनली कोर्स है, राइट। बट आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है इन डिटेल्स, अगर कोई सीरियस लर्नर्स है you should not miss this opportunity, right. And for CREALTH students and for all the attendees we have a special discount till 25th December, so don't miss this opportunity, right. मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ, right, in the chat box, so you can just go in the chat box and just see that, okay, so that you kind of understand what you learned in this course, plus the best part is in this course you get to understand things in details, techno funda both, खाली technical नहीं, technical plus fundamentals, right, which is very very important. Got it? Okay, so let's come back to the topic again. Okay, link is will be shared in the group, right, so don't worry. Okay, now let's I think open the floor for questions, right. कि जिसके जो questions है आप पूछ सकते हो, right, but only ask one question at a time, right, because I don't want a chaos over here, right. कि सब जन 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे, because I want to answer everyone, because सबका आंसर रहेगा तो it will be much much easy for me to kind of cater everyone, right. So जो भी आपके questions है you can ask one by one, right, and I'll be happy to answer, but with a proper time frame view also, कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए पूछ रहे हैं, राइट। और जो कोर्स का लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच, या आप हमारी वेबसाइट community.crealtheducare.com पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज शेयर ऑल्सो काइंड ऑफ मेंशन द टाइम फ्रेम कि आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म क्या चीज़ के लिए
हमें वो स्टॉक देखने के लिए बोल रहे हैं. So the first query we have today is from Harish G, HCC long term. Okay. So HCC long term. Again, disclaimer: whatever we discuss is purely for education purpose. All the stocks which we discuss, please do not consider this as a recommendation. Please consult a financial advisor. You are not responsible for action. This is purely an education webinar. तो हरीश जी, अगर आप एच सी सी देखें लॉन्ग टर्म के लिए, वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है 47 के आसपास, बट ओवरऑल वीकली चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मंथली चार्ट भी हम देख लेते हैं. मंथली चार्ट पे आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. So if you are holding, keep holding this stock, right? And plus, I think this is a stock which has some great news coming in from the last few months, right? So चीज़ें भी पॉजिटिव, डेवलपमेंट्स भी पॉजिटिव है. सो कीप होल्डिंग दिस फॉर लॉन्ग टर्म. आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 34 से 35 के बीच लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है. Sternex holding term loss, any view short to medium term? Okay. Sternex performance, I think very strong charts, काफ़ी strength है in the weak markets. They're holding, keep a trailing stop loss of 2858 and keep holding this. I think stock charts are very strong. Right. Epic Grill for long term. Okay. Epic Grill for long term, अगर आप पूछोगे तो long term के लिए stock chart is bullish, trend is bullish. If you are holding, keep a stop loss of 1862 and keep holding this, right? Stock का chart अच्छा है, right? Reliance for short term, Aryan is asking. सो शॉर्ट टर्म के लिए रिलायंस मुझे वीक लग रहा है, राइट? कोई भी स्टॉक में रिकवरी नहीं है. एक अच्छी रिकवरी आई थी बट अगेन इट गॉट सोल्ड ऑफ, राइट? तो इट इज़ यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड करें 1225 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए. उसके नीचे अगर जाता है देन यू शुड एग्जिट. बट व्यू आई थिंक चार्ट इज नेगेटिव, राइट? पूना वाला फॉर लॉन्ग टर्म. पूना वाला लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 330 के आसपास क्लोजिंग बेसिस, बिकॉज ओवरऑल चार्ट्स मुझे वीक लग रहे हैं और उसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है विच इज़ नेगेटिव पैटर्न. तो 330 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, राइट, देन यू शुड एग्जिट इफ अ मंथली क्लोजिंग का. बाकी कंपनी अच्छी है बट मुझे लगता है कि भी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करना चाहिए. ओके. In such a market, how do you see new listings? I think न्यू लिस्टिंग्स पे मुझे उतना कुछ बहुत खास नहीं लग रहा है. अगर आपको लिस्टिंग गेन मिले तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड मे बी यू कैन पुट द प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट्स आपको मिल रहा है वो आपको होल्ड कर देना चाहिए. बट बाकी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बुलिश नहीं लग रहा है, राइट, टू द कंपनीज विच हैव कम, राइट? हिल्टन मेटल फॉर लॉन्ग टर्म. So Hilton Metal for long term, if you are holding, ओके, तो एक अच्छा रिवर्सल आया, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है 80 के आसपास. इफ यू आर होल्डिंग, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 80 एंड कीप होल्डिंग दिस, राइट? ब्रिटानिया फॉर शॉर्ट टर्म. ओके. Britannia for short term, I think charts are weak, right? Though it is at a support, right? But इसके numbers बहुत ही ख़राब आए थे last quarter. And FMCG as a sector भी काफ़ी bearish है, right? Because उसका commentaries भी बहुत weak थी. तो short term के लिए अभी तो avoid ही मैं बोलूँगा इसको. गणेश बेंजोप्लास्ट medium term, okay. गणेश बेंजोप्लास्ट medium term के लिए आप वीकली चार्ट्स अगर देख रहे हैं तो यू कैन होल्ड इट विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 129 130 लेवल्स. स्टॉक एक अच्छा रेंज बाउंड स्टॉक है, खास कुछ है नहीं. अगर कुछ अच्छी रिकवरी आती है 170 170 तो आपको एग्जिट करना चाहिए. ओके. स्वान एनर्जी. ओके. सो स्वान एनर्जी आई थिंक बहुत ही अच्छा चार्ट्स है. लॉन्ग टर्म में एक ब्रेकआउट भी हुआ है, राइट? तो एनी रीटेस्ट ओवर दिस यू शुड होल्ड दिस एंड 700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर मीडियम टर्म, राइट? हाउ डू यू सी मार्केट प्री बजट? आई थिंक बजट से ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है कि Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं, राइट? Q3 के, सॉरी, राइट? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड मुझे लगता है प्री बजट रैली डेफिनेटली आएगी, स्पेशली इन द PSU स्टॉक्स, राइट? बिकॉज दिस टाइम बजट मतलब पूरा बजट इस बार प्रेजेंट होगा, राइट? बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट को बहुत ज़्यादा आशा है बजट से, तो एक प्री मार्केट बजट रैली बननी चाहिए. बट द मोर फोकस शुड बी इन Q3 रिजल्ट्स, बिकॉज वो अगर ख़राब आते हैं देन it will be a big dampener for the market because Q2 results were very bad. So main ज़्यादा वो important होगा. कल्याण ज्वेलर्स for short term.
ओके, कल्याण ज्वेलर्स फॉर शॉर्ट टर्म आई थिंक लुक्स गुड, एक अच्छा रेजिस्टेंस है 777 के ऊपर, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है देन आई थिंक दिस शुड डू वेल. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी 730, राइट. स्वान एनर्जी लॉन्ग टर्म यू शुड होल्ड, मैंने ऑलरेडी बता दिया है. आर सिस्टम फॉर मीडियम टर्म. Our systems today has given a good bullish candle, right. वॉल्यूम्स देख लेते हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, राइट. तो मीडियम टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस शुड बी टुडे लो, राइट. एंड 540 के ऊपर ये अच्छा करना चाहिए. ओके, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन. ओके, ग्रेट ईस्टर्न, इसका चार्ट थोड़ा सा वीकर साइड पे है, एक अच्छा सपोर्ट है 1040-50 के आसपास, बट अगर ये ब्रेक होता है यू शुड एग्जिट, एंड कोई भी रैली पे भी आपको एग्जिट करना चाहिए बिकॉज मार्केट्स रिकवरी पे इस पर कोई रिकवरी नहीं है, राइट. सो बेटर यू शुड अवॉइड सच वीक स्टॉक्स. एक्सप्लोर सॉल्यूशंस मीडियम टर्म. ओके, एक्सप्लोर सॉल्यूशन मीडियम टर्म लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आज अच्छा ब्रेकआउट आया है. इफ यू आर होल्डिंग कीप होल्डिंग एंड टुडेज लो शुड बी अ स्टॉप लॉस, लुक्स गुड, राइट. NAVA Nava. Nava, I think short term, medium term is sideways. So if you're holding, keep 995 as a stop loss. So the last three questions I'll be taking today, right? Uske baad we'll be finally doing some closing remarks and then we'll be closing it, right? Enviro Infra, I think this is listed recently, right? तो उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. One way it is kind of moving up, right. So if you're holding, keep today's lower stop loss and keep holding this. Very strong up move in the last 3 days, right. So but एक trailing stop loss आपको ज़रूर रखना चाहिए, right. So this is very important, friends. And बाकी I think overall मैंने sum up कर दिया है. Let's hopefully that tomorrow markets turn from here, because अगर यहाँ से नहीं घूमते देन काफ़ी आई थिंक डिसअपॉइंटिंग रहेगा बुल्स के लिए, राइट. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, so friends, we'll meet again Sunday. We'll discuss about markets. Let's see how it goes in the next few days. And हम काफ़ी कुछ नया लाने वाले हैं. And we'll have a webinar also very soon, which will be launching in next 1 or 2 days, right? तो एक बहुत ही अच्छा webinar भी हम host करने वाले हैं. So those who have not joined the kind of knowledge community groups, जल्दी से join कर लीजिए. Because this time it's going to be really knowledge experiencing, right. And we want to share as much right knowledge as we can, right. सो अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए थे. मनबा फाइनेंस किसी ने पूछा है. सो मनबा फाइनेंस, इफ यू आर होल्डिंग कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 170. चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, राइट. ओके, वेदांता के चार्ट्स अच्छे हैं, राइट. सो वेदांता, इफ यू आर होल्डिंग कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 494 फॉर शॉर्ट टर्म. फॉर मीडियम टर्म शुड बी 440 लेवल्स, राइट. चार ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज गुड. 520 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ओके, yes, small and mid cap is bearish, engulfing, तो थोड़ा cautious रहना चाहिए. Okay, so friends, thank you so much everyone for joining. It was a pleasure talking to you all. I hope we added some value to you, right. And if it does, please share this video with your friends and families and those interested in markets. Okay, thank you so much everyone for joining. We'll see you all next Sunday. Till then, take care, bye bye, good night, Shubhratri, and have a great trading and investing week ahead in the next 3 days. And hopefully we see a strong recovery in the markets. Okay, so thank you so much for joining. Bye bye, Shubhratri, take care, and I'll see you all this Sunday once again for market Kya Lagta Hai. Thank you for your feedbacks, thank you for sharing so much love, and see you all in the webinar and then again in the course very soon. Thank you, bye bye, Shubhratri, take care, good night.